good morning students. Welcome back to our English class. In today's lecture, we are going to start one new chapter, that is chapter number 6, The Two Friends and the Bear. Students, this is a story of two friends and a bear. The two friends named Vijay and Venkat. Okay, they both are the best friends, and when they passes a jungle, a dense, deepest forest, they passes and they overcome to the bear. Okay, so let's continue this story from our book. Lesson number 6, Two Friends and the Bear. Students, this is a story. Let's read it. Moving on. Once upon a time, there were two good friends, Venkat and Vijay. Venkat and Vijay. They lived in a town which was close to a deep forest, in which many wild animals lived. Venkat and Vijay spent a lot of time together. In this story, there are two friends named Venkat and Vijay. Okay, they lived in a town, and this town is located very close to the deep forest. There was a big forest, deep forest, and near to that forest there was a town in which these two friends lived. Okay, and these both friends spent a lot of time together. Now, you will always be my best friend, Venkat, Vijay would say. Vijay ने बोला कि Venkat, you are my, always you will remain a best friend. Okay, no matter what, I will always stand by you. Vijay ने क्या बोला Venkat को कि Venkat, तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, कोई भी सिचुएशन हो, I will always stand by you. कोई भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. ऐसे किसने बोला? Who told? Vijay told to Venkat. Now, so will I, Venkat would reply. Venkat ने भी बोला कि I will also. Okay, where else would I find such a friend? Days passed happily as both friends lead their lives never forgetting to meet each other, however busy they were. Okay, Venkat ने भी बोला कि कुछ भी हो जाए, we will not end our this friendship, and this way many days passed out happily. They both friends met each other, though they were so busy, but they spent extra time to meet each other. Okay, वो कितने भी बिजी हो पर एक दूसरे से हमेशा मिलते रहते थे. Okay, one day Vijay told Venkat that he had to buy some clothes from the next town. Okay, one day what happened? The boy named Vijay ने अपने friend Venkat को बोला कि उसको new clothes चाहिए पास वाले town से. Okay, when Venkat heard that, he proposed to go with Vijay as he too wanted to purchase a few things. Okay, as soon as Vijay ने Venkat को बोला कि उसको clothes चाहिए, तो Venkat ने भी बोला कि हाँ, मुझे भी कुछ वहाँ से purchase करना है, थोड़ी चीजें वहाँ से लेनी है. So that would be excellent, exclaimed Vijay. Vijay ने बोला कि that would be excellent. So we will have a nice time together and I won't feel afraid crossing the dense forest on the way. Okay, now what happened students? हमने ऊपर पढ़ा कि जहाँ पे एक टाउन है जहाँ पे ये विजय एंड वेंकट रहते थे, उसके नियर बाय एरिया में क्या है? फॉरेस्ट है. कैसा? डीप, घना फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा. ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है. और यहाँ पे एक दूसरा टाउन है जहाँ पे विजय को शॉपिंग करने जाना है और वेंकट को भी शॉपिंग करने जाता है. तो दे बोथ डिसाइडेड टू गो टू द टाउन ओवर हियर, ओके, फॉर द shopping. Okay, and Vijay told, okay, if
You are with me. I will not be afraid of crossing this forest. ओके, विजय ने बोला अगर तुम साथ हो तो हम नहीं डरेंगे, हम इजीली ये फॉरेस्ट क्रॉस करके दूसरे टाउन में चले जाएंगे. ओके, सो ओ यस वी विल बी सेफ टुगेदर. वैकन ने भी अग्री किया कि हाँ अगर हम साथ होंगे तो हम दोनों सेफ होंगे. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड फर्दर, लेट्स सी. द नेक्स्ट डे द टू फ्रेंड्स स्टार्टेड अर्ली इन द morning. It was cool and pleasant. Okay, on the very next day दोनों friends morning में यहाँ पे दूसरे टाउन जाने के लिए घर से निकल गए. and morning कैसी थी? Yes, it was cool and pleasant. Hundreds of birds were chirping merrily. Hand in hand the friends walked happily, talking about this and that and cracking jokes. What happened? In the morning they started going towards the town. The atmosphere was very cool and pleasant, and there were so many birds chirping together and happily. Okay, so they both friends, while talking happily, they started moving further and further, and also they were cracking some jokes. Okay. चलो, you can see the images given to you. In the dense forest, these both friends are happily talking, cracking some jokes. They are moving further. Okay, now let's study what happened. चलो देखते हैं आगे क्या हुआ. Soon they were in the deepest part of the jungle. और चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच आ गए. इतना बड़ा डेंस फॉरेस्ट था ना. सो द ट्रीज वेर सो टॉल के मॉर्निंग टाइम में भी दैट इट वॉज डार्क इवन इन द डे टाइम. डे टाइम मीन्स नून टाइम. मॉर्निंग में भी वो एरिया कैसा था? डार्क हो गया था. इतने ट्रीज लंबे लंबे टॉल थे. ओके, एंड at that time both the friends became quiet and walked faster, anxious to cross that path as quickly as possible. Okay, so दोनों फ्रेंड्स तो हंसी मजाक कर रहे थे, जोक्स सुना रहे थे एक दूसरे को. वो एकदम क्वाइट, चुप हो गए, साइलेंट हो गए, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और तेजी से चलने लगे, तेजी से वॉकिंग करना स्टार्ट किया. क्यों ऐसा किया? बिकॉज दे वर एनेक्शियस. एनेक्शियस मीन्स वरीड, उनको टेंशन हो रहा था. दे वर वरीड टू क्रॉस दैट पार्ट ऑफ द जंगल एज क्विकली एज पॉसिबल. उनको वो जंगल का वो एरिया उनको फटाफट क्रॉस करना था, क्योंकि उनको डर लग रहा था अगर कोई एनिमल आ गया तो. ओके, सो लेट्स सी फर्दर व्हाट हैपेंड. दे had nearly crossed the dense patch when they heard the deep growl very close by. It was so close that hair stood on hand and they were terrified. और अचानक से एक एनिमल का ग्रोलिंग साउंड आया. ओके, और दोनों के हेयर स्टूड ऑन एंड मीन्स दोनों के रोंगटे खड़े हो गए. वो इतना डर गए कि व्हाट हैपेंड, कौन सा एनिमल आ गया, इतना डर गए वो. सो अ बियर, वैकन सेड इन अ शेकी वॉइस. और डर डर के धीरे धीरे से वैकन ने बोला कि बियर आया. ओके, सो एज ही सो द बिग ब्लैक शेप कमिंग रैपिडली टूवर्ड्स देम. क्या देखा उसने? बिग ब्लैक शेप का किसी को आते हुए, फास्ट अपनी साइड आते हुए देखा, और उसको वेकन को लगा बियर आया. और वो आप जानते हो बियर किसी को देख ले तो वो क्या करता है. ओके, सो रन शाउटेड विजय एंड टुक टू हिज हिल्स. और विजय ने बोला दौड़ो जल्दी. तो अगर दौड़ने में आवाज की तो बियर को पता चल जाएगा. वो साइलेंटली दौड़ने लगा बिना आवाज किए. ओके, सो बोथ ऑफ देम knew that the big bear would soon catch up with them, and then there was no telling
what it would do to them. अगर हम तेजी से भी दौड़े तो भी बियर तो हमें पकड़ लेगा और फिर हमें पकड़ने के बाद वो क्या करेगा? There is nothing. आप सब जानते हो कि बियर उनको खा जाएगा मार के, ठीक है? So we will die. Okay, so climb the nearest tree you see, painted Vijay as he was a tall tree ahead and rushed towards it. Okay, वहाँ पे ट्री थे लंबे और विजय ने बोला चलो ट्रीज पे क्लाइंब करते हैं. बट आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, वेकंट shouted. वेकंट जोर से बोला मुझे ट्री पे चढ़ना, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री आई डोंट नो. ओके, हेल्प योरसेल्फ, आई कांट डू एनीथिंग नाउ सेड विजय. उसके फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड था विजय, वो तो ट्री पे चढ़ गया क्योंकि उसको आता था. ओके, और विजय ने बोला, जब वेकंट चिल्ला के बोला कि मुझे ट्री पे क्लाइंब करना नहीं आता है, तो विजय बोला कि खुद की हेल्प करो और चढ़ जाओ ऊपर. सो विजय ने वेकंट की कोई हेल्प नहीं की. ओके, नाउ सेफ एंड हिडन बिटवीन द थिक लीव्स ऑफ द ट्रीज. क्या बोला? थिक लीव्स के बीच में आप छुप जाओ. बट वेकंट को एक आइडिया आया. वेकंट थॉट क्विकली एंड रिमेम्बर्ड, उसको याद आया कुछ, दैट ही हैड हर्ड दैट द बियर्स डू नॉट अटैक लाइफलेस थिंग्स. जो डेथ हो गई है जिसकी, जो मर चुके हैं, जो जिंदा नहीं है, उस पे बियर कभी अटैक नहीं करता है. अचानक से ये वेकंट को याद आ गया. सो विद इन अ मिनट्स द बियर लंबर्ड हैवीली अप टू हिम. विद इन उसी मिनट में क्या आया? बियर आया और उसको, उसके पास आया और उसको सूंघा उसने. ओके, इट वेंट राइट अप टू द वेकंट. वेकंट के पास गया एंड स्निफ्ड अराउंड फॉर अ वाइल. उसके आजू बाजू घूम रहा था वो बियर, आप देख सकते हो यहाँ इमेज में. ओके, देन वेकंट केप्ट हिज आईज क्लोज्ड एंड प्रिटेंड टू बी अ डेथ. और उसने ऐसा बिहेव किया कि उसकी डेथ हो चुकी है. सून द बियर टर्न्ड अराउंड एंड वेंट. और बियर थोड़ी देर में वहां से चला गया. गेट अप वेकंट, द बियर हैज गॉन, सेड द विजय. विजय ने क्या बोला वेकंट को कि वेकंट अभी उठ जाओ, बियर चला गया है. नाउ व्हाट हैपेंड? द वेकंट वॉज वेरी क्वाइट एज दे स्टार्टेड वॉकिंग अगेन. वेकंट अभी एकदम शांत हो गया क्योंकि बियर तो उनके ऊपर जो मुसीबत आई थी वो तो टल गई. ओके, टू गेट हिम टॉकिंग विजय चॉक्ड. उसके साथ, क्योंकि वेकंट बिल्कुल क्वाइट हो गया था, कुछ बोल नहीं रहा था, तो उसके साथ बात स्टार्ट करने के लिए विजय ने उस पे जॉक करना स्टार्ट किया. तो विजय ने क्या जॉक किया कि आई सो द बियर विस्परिंग इन योर ईयर्स, कि मैंने देखा बियर तुम्हारे कान में कुछ बोल रहा था. व्हाट वॉज ही सेइंग? बियर क्या बोल रहा था तुम्हें? तो वेकंट ने रिप्लाई देते हुए क्या? ही वॉज जस्ट टेलिंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू, कि तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स से मुझे दूर रहना चाहिए, ऐसा उस बियर ने बोला. ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर. So students, I hope now the story of the two friends and the bear is clearly understood by you. Moral of the story is that you must have a limited friend but the best friend which helps you, which stand by you in whichever whatsoever situation. Okay students, so go through the chapter once again, read the chapter thoroughly and try to solve the exercise given at the back. Till that, bye bye, take care.